Khan Gibran Khan, City versus Liverpool आ चुका है bro. Yes, we are here. We are here to talk about a lot of stuff. सबसे पहले तो मैं तो सिटी लिवरपूल पे आना चाहता हूँ because that's the biggest game on the weekend. Yeah. लिवरपूल वापस फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है. बिल्कुल. And City is Erling Haaland scoring more goals than half of the league. नहीं यार, I think did you see his robot celebration? Yeah, I did. I think उसने जरा मीम्स वगैरह काफी देख लिए हैं. पीटर क्राउच का भी कोई ट्वीट आया था उसके ऊपर. इंस्पिरेशन तो वही था. But yeah, I think City Liverpool, I think it's a big game for both teams. Yeah. दोनों टीमों के लिए सख्त. I think the current situation Liverpool's in. Did you watch the Madrid match? Not really. Did not catch a lot of it. यार मैं देखा तो मैंने है लेकिन आधी नींद में. लेकिन जितना मैंने देखा है वो ये है कि मुझे तो लगता है लिवरपूल आर लाइक आई सेड बिफोर ब्रो, मतलब ग्रेवेनबर्च, मैकलिस्टर, ये लोग वापस आ गए हैं. स्क्वाड की डेप्थ काफी ज्यादा है. I don't think depth है लेकिन फर्स्ट टीम क्वालिटी अच्छी है. फर्स्ट टीम को तुम डेप्थ देख लो यार, मतलब वो कर्केस को एक मैच खिलाता है, फिर रॉबर्टसन को दूसरा खिला रहा है. रॉबर्टसन ने विनीशियस जूनियर को ऐसे जेब खाली करते हैं ना, तो फिर विनीशियस ही निकला है. रॉबर्टसन पेनिटेंशियरी में विनी जूनियर आ चुका है. या सो आई जस्ट फील के सिटी लिवरपूल cracker of a game. Arsenal I think has a 6-point lead or 7-point lead, something like that. Yeah. And this is definitely a game where they can play catch up. I think Arsenal fans like yourself would want a draw. Yes sir. Draw would be perfect. But having said that, I think it's last 6 games में 2 wins, 2 losses and 2 draws. Wow. So on the cards है, draw on the cards है. Lovely stuff. यार हालैंड के बारे में अगर बात की जाए तो क्या कमाल प्लेयर है यार. मतलब he is the best finisher out there. Bro, he is. I think you said that last week as well. Good, bro. He's too that good. guy is insane यार. Actual robot. Robot ही है bro. वो बना ही किसी एक लैब में. यार नहीं, वो आपने नहीं देखी. He's actually like उन्होंने कहा है. Did you see that the one where the इसकी mother is an athlete, grandmother is an athlete from both sides, grandfather is an athlete, father is an athlete, grandfather is an athlete, great uncle is an athlete. मतलब मैं बता रहा हूँ ये टेस्ट ट्यूब बेबी है. टेस्ट ट्यूब बेबी. इसका बड़े भाई का वो बता रहे थे कि इसके बेचारे का करियर उसके फादर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला कि यार तू परफॉर्म करेगा. He didn't make it. और हालैंड को उसने वो दूसरा अप्रोच किया है. Lesson for all parents. Yes sir. So उसके फादर के साथ भी तो खैर पता ही है सबको कि क्या ही हुआ था. Roy Keane happened. Yeah, Roy Keane happened and then I think Haaland has happened to everyone else. So, but karma. हाँ, तो I think कि Haaland यार कमाल का प्लेयर है. Insanely talented guy यार. I think the guy scored 13 league goals already. And I What's think the next best? कोई 4-5 पे है कोई? नहीं, I think 6-7 पे Semenyo है I think. Antoine Semenyo, bro, what a player. Yeah, and if you look at it, so they've he's outscored Sunderland, Villa, ये तुमने लिखा हुआ था. मैं लिखा है. Sunderland, Villa, Newcastle, Everton, Fulham, Leeds, and who else is there? Wolves, Nottingham, West Ham. तो मतलब कह लो आधी लीग एक बंदे ने की है. एंड यार वैसे यू नो व्हाट सादी, व्हाट आई रियली अप्रिशिएट नाउ सिटी, ये जो टिकी टाका करते थे ना अब थोड़ा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो गया. आई लाइक दैट. आई लाइक कि उन्होंने उसको फोकस किया है. पिछले मैच में भी वो चर्की को, मतलब वो चर्की वैसे कमाल प्लेयर, गुड प्लेयर. राइंडर्स को उसने कहा है कि छुट्टी मार तू. और राइंडर्स तो मैंने तुम्हें लास्ट वीक बोल दिया था. सीजन 1 एपिसोड 1 अब अगले साल देंगे. नहीं अभी दिसंबर आ रहा है ना, अभी आएगा. नहीं बट चर्की कमाल प्लेयर. हालैंड आई थिंक ही हैजंट बीन as watching this video like on Instagram. अब मेरी एल्गो भी वही वाली आती है, एक बार आप वीडियो बस लाइक करते ना तो बस फिर वो हालैंड. तो उस पे आया था कि I think the guy has not been offside in the last पता नहीं कितने matches. And like yeah, that's insane. That's crazy. Like just to give you perspective, I think Mbappe was offside like 8 to 10 times in the El Clasico. Was that live? आप लोगों ने देखा होगा साथ. हर दफा ही ऑफसाइड हो रहा था. और क्या कमाल प्लेयर यार. और I just feel bro that guy is too good. अच्छा हाँ, खैर मैंने स्टैट्स निकाली हैं. अर्लिंग हालैंड इज एट 13. उसके बाद 4 प्लेयर हैं 6 गोल्स पे. डैनी वेलबेक, सेमेन्यो, इगोर थियागो. सरप्राइज पैकेज फॉर मी यार. For sure. Crazy finisher. और जॉन फिलिप मैटेटा. What a player.
तूने डाला Mateta को वैसे? मैंने Mateta नहीं डाला, मैंने याद नहीं मुझे, एक सेकंड देख लो, लास्ट वीक की थी चेंजेस, इस वीक नहीं की। मैंने तो वोल्टमाटा रखा हुआ है। वोल्टमाटा तो मेरे पास भी है। हाँ, वोल्टमाटा, जॉ पेड्रो। तो खैर आई फील लिवरपूल की अगर हम बात करें तो इफ यू वॉच द मैड्रिड मैच, सॉरी मैं खोल गया टीम, इगोर थियागो ही डाला था मैंने। कुछ नहीं किया इस वीक, कुछ नहीं किया। ठीक है, करेगा। अच्छा खैर, लिवरपूल की यार मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। आई फील ही वेंट बैक टू द फॉर्मेशन दैट वाज सक्सेसफुल फॉर हिम लास्ट सीजन। बिल्कुल सही। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक लिवरपूल फैंस वांटेड, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। अगर मैं अपनी रोज टिंटेड ग्लासेस हटा के देखूं, यार, do what's working for you. Yeah, absolutely. And I feel कि like you know that combo of McAllister and Gravenberch, यार मतलब वो कमाल के उनका वो एक मिडफील्ड वाला रोल बन गया। अब वो खुला उन्होंने दिया हुआ है आगे प्लेयर्स को। आइजैक का होना ना होना वो मैं नहीं कुछ कह सकता। Ekitike is doing Ekitike बहुत अच्छा है। Ekitike no Hugo for Ekitike this time. Yeah, and Isaac यार पता नहीं, maybe it will take, he is a class player, proven Premier League player, मैं वही कहने लगा था, he's too good of a player to not work. Yeah, for sure, but I just feel the way Ekitike is playing right now, the directness he's playing with, like जिस तरह वो आजकल खेला, मैड्रिड के खिलाफ भी उसने बहुत अच्छा खेला था। And you know it's लिवरपूल, मैंने जैसे कहा था, मैंने कहा यू रूल देम आउट ऑफ द टाइटल चैलेंज। आई एम ऑलरेडी, आई डोंट थिंक सो ब्रो, मैं बता रहा हूं, they're not winning it bro. I think they are on what 18 points. हां, they're not winning it. Oh, विला को तो उन्होंने लिटरली स्टीम रोल कर दिया। विला तो यार, विला आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट टैक्टिक्स एज वेल, लाइक विला प्लेड टैक्टिक्स दैट no one else played. That's why they lost 2-0. So like मतलब बंदा उनसे ऊना एमरी से पूछे यार कि यार तू क्या सोच रहा था, तू क्या कर रहा है? हाँ, उसने कहा जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। But yeah, I just feel Liverpool good chance for both teams to make a comeback, stake their claim as title contenders. Yeah, title contenders, and yeah, definitely I feel that. So I feel let's see क्या बनता है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं संडे को लाइव आ जाऊँ, मैं बंदा देखता हूँ अगर कोई मुझे मिल जाए। जिब्बी तो नहीं है, जिब्बी जा रहे वेके पे ब्रो। मैं जा रहा हूँ, मैं ये वेके पे, लेकिन यार मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का है तो बनता है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अभी आई तो नहीं है ना, या आ गई? नहीं, हाँ कि चली भी गई इसलिए नहीं, अब तो ज्यादा जरूरी है ब्रो, जाना पड़ता है तो नहीं। सो बट आई वुड हैव लव्ड टू बी हियर फॉर संडे, बट करना चाहिए यार वॉच अलोंग, मजा आता है। स्पर्स यूनाइटेड का वॉच अलोंग नहीं हो सकेगा क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मैच चल रहा होगा, तो मैंने वो देखना है। कल भी यही था ना, क्योंकि मैंने लिवरपूल का मैच इसलिए नहीं देखा क्योंकि सुबह से मैं वनडे देखा है, पर आर्सेनल का मैच देखा, फिर मैंने कहा यार अब मैं बस बहुत हो गया, अब मैं सो रहा हूँ। मेरे यार आर्सेनल का मैच की अगर बात करें, हाउ डू यू फील मरीनो ब्रो? मिकेल मरीनो, मैं कल जब उसने 2 गोल मारे हैं ना, आई वाज लाइक यार ही इज सच अ वियर्ड प्लेयर एंड आई फकिंग लव हिम। यार सच अ वियर्ड प्लेयर। आई डोंट नो वो है क्या, इज ही स्ट्राइकर? उसकी फिनिशिंग तो स्ट्राइकर वाली है यार, फिनिशिंग स्ट्राइकर वाली बिल्कुल है। इंटेलिजेंट यार, इवन फॉर स्पेन इफ यू लुक एट इट यार, उसने क्लच गोल्स ही इज प्रूवन कि यार मतलब आपको यार देखो, मतलब मैं कहता हूँ अर्टेटा को क्रेडिट जाता है, ठीक है, इस बात पे कि उसने, ठीक है, हैवर्ट्स का भी एक मिक्स रोल था चेल्सी में भी, बट टू बी एबल टू व्हेन योर मेन स्ट्राइकर इज आउट, टू बी एबल टू, अब मार्टिनेली भी नहीं है, ग्योकेरेस भी नहीं है, ओडेगार्ड भी नहीं है, टू बी स्टिल बी एबल टू फील्ड a very competitive team and then play the way they did. And they've tied that 108-year record of 8 clean sheets in a row. That's crazy. It's insane. I think they're going for more. अभी संडरलैंड के खिलाफ मैच है, तो मेरे ख्याल में तो क्लीन शीट है। मुझे लगता है उन्हें गोल से ज्यादा क्लीन शीट की फिक्र होती है ब्रो। गोल पड़े ना पड़े, गोल खाना नहीं है ब्रो। गोल नहीं खाना। और वो साका ने भी पेनल्टी मार ली। चल, साका की तो बात की बात है कि वो बेचारा पेनल्टी के अलावा गोल नहीं मारता। तुमने कुछ प्रीमियर लीग में लिया था, किसी को कप्तान भी बना रहे थे? नहीं यार, मैंने दोबारा सोचा, मैंने बोला था ना बनाओ सर, मैंने नहीं बनाया। अच्छा डिसीजन था, आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। या बट लाइक यार, बर्नली के खिलाफ होना चाहिए था। ही क्रिएटेड 2 बिग चांसेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन दैट मैच, एंड ही कुड हैव हैड अ गोल। And but Haaland again, you cannot bet against a robot machine. तो वो तो मेरी my bad on that one. I did though. अच्छा, who did you? I made Timber the captain.
सही है, सॉलिड. Gabriel would have been maybe a better pick. He would have been a better pick. I was actually मैं कभी-कभार ना फीलर्स पे चला जाता हूँ. यार मैं भी जाता हूँ फिर उसी वजह से वो वापस आके bites you in the ass. Yeah. तो वापस उसी वजह से फिर नीचे भी आते हैं. लेकिन वही है, that's the fun of it. FPL है वो उसी का मजा है. कभी-कभार मजा भी आता है to go more into the depth and like be with the just सारे कह रहे हैं, लेकिन good मजा आता है. Gabriel is a good captain. I think even this week Gabriel is a solid captain shout. He's playing Sunderland. The clean sheets galore. आपने Gyökeres तो नहीं रखा, but for people who have Gyökeres, I think take him out. Direct change is Mateta, yes. Solid person. उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है यार. वो तो मतलब जैसे पाकिस्तान में टमाटर का रेट इंक्रीज होता है ना, उसका उसी तरह रेट रोजाना बढ़ता जा रहा है यार. रोजाना बढ़ता जा रहा है. और मेरे से तो मेरे बजट से बाहर हो गया. मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं ब्रो. यार तूने पता नहीं घर लेकर जाना है पैसों के साथ. मैंने एक्चुअली पता है पहले मैंने वेट किया हुआ था कि मैं ना जैसे ही आइजैक का ट्रांसफर होता है तो मैं उसको लेके आऊंगा. तो मैंने बचाए हुए थे. आइजैक आया और आइजैक इंजर्ड हो गया, तो उसके पैसे बच गए सारे. फिर मैंने इगोर थियागो से किया, सो दैट्स अ ह्यूज गैप. तो पैसे पड़े मेरे पास. That's a good thing actually. Sometimes in FPL I feel ke when you go for the expensive player or you keep that budget in mind, you can shift around. Just say like people who started with like Salah, Haaland. I started with Salah, Haaland. Yeah, then you can move away from those players and you can keep it. Salah की भी अगर बात करें तो अभी जैसे AFCON I think 5-6 हफ्ते बाद आ रहा है. यार दिसंबर में है ना. यार दिसंबर में, एंड ऑफ दिसंबर. उसमें भी उन्होंने रूल्स चेंज किए कि आपको 5 ट्रांसफर मिलेंगे गेम वीक आई थिंक 16 में. तो गेम वीक 15 तक यूज ऑल योर transfers and then 16 you'll get 5 regardless of how many you have. And so if you have a couple of transfers remaining तो क्या 7 हो जाएंगे? नहीं, 5 से ज्यादा नहीं होंगे. 5 सबका 5 होगा and you don't need to make a transfer. They can continue forward. तो इन्होंने इस साल बहुत ज़्यादा आई फील रिलैक्स में थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि जो लोग महीने नहीं देखते, जिनका बुरा स्टार्ट हुआ है, दे कैन मेक अ कम बैक. एंड लाइक द प्रीमियर लीग इटसेल्फ, लाइक सेकंड इज 19 पॉइंट्स. आई थिंक विला इज लाइक व्हाट 11th एंड देन ऑन 15 पॉइंट्स. तो काफ़ी गैप कम है. सारे फंसे में एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रीमियर लीग मैन. अच्छा यार, प्रीमियर लीग, staying on to the subject, Spurs United. That's another interesting clash. Yeah, very interesting. Spurs have been topsy-turvy. Chiellini ने क्या कहा था? It's the history of the Spurs. It's the history of the Tottenham. I love my Chiellini, bro. तो वो उसने बिल्कुल प्रूफ किया कि आप जितने भी अच्छे हो, आप फिर भी जाओ पेड्रो से गोल खा सकते हो. वो तो मैंने मैच उसके आप did you see the match? I saw the match. Caicedo was amazing. And चेल्सी की अभी तारीफ करते हैं, लेकिन टॉटनहम was so piss poor. मुझे तब चढ़ी थी कि कर क्या रहे हैं यार. मैं तो कहूँगा, मैं चेल्सी का फैन हूँ, तो मैंने तुम तो एंजॉय कर रहे हो. लेकिन एज अ न्यूट्रल आई वुड से कि इफ आई वाज वाचिंग इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, they played really bad. They played really bad. And did you see like वो Mickey Van de Ven and वो Spence, Jed Spence, they didn't shake his hand. खैर दोनों ने reconcile कर लिया. और तुमने मिकी वैन डे वेन का गोल देखा? गोल ब्रो, यार बंदा क्या प्लेयर है यार. मैं तो कह रहा हूँ यार. खैर मेरी तो दूसरी वाली फैंटेसी में भी है, ड्राफ्ट वाला जो है. I think he has a very high ceiling. Yeah, he has a high ceiling. Very high ceiling. He has a high ceiling, definitely. And just if you talk about the game again, I think Caicedo, elite footballer. Wow. Best CDM in the Premier League, I would say. Easily, by far, the best CDM. There is no one better. Okay. Number 8 नहीं क्या, number 8 तो मैं कहूँगा डेक्लन राइस है. हाँ, और उसने प्रूव भी किया था पिछले हफ्ते भी. और नहीं, बात सही कर रहे हो. I have no arguments with that. Caicedo is elite. वो जिस तरह हमारी एक रील पे मुराद जमाली ने कमेंट भी किया, is this the agreeing podcast? मैं एग्री कर रहा हूँ. हाँ, तो वो यही है कि Caicedo is elite. I think JP should have had more. He could have scored more. वो उसने mess up किया है. वो क्या है? I think who missed that chance? वो जो टैप इन था, जिमी गिटन्स था मेरे ख्याल में. गिटन्स यार, we could have sealed the deal यार. गिटन्स missed an easy chance. Last week मैं तुमसे जाओ पेड्रो की बात ही कर रहा था कि क्या हुआ है उसकी फॉर्म को. अभी उसने दिखाया यार, बट एक्चुअली लाइक तुम गोल भी देखो ना, मतलब वो मैं कहूँगा कैसेडो ने खुद क्रिएट किया. मतलब वो गलतियाँ ठीक है वैन डे वेन और स्पेंस की थी, लेकिन क्रिएट करने वाला Caicedo ही था. That relentless effort, that relentless push,
it's too much, man. I think he's I think what 23, 24 years old. He hasn't even hit his peak yet. Not really. Yeah, and कमाल का player है. हाँ, कमाल. Caicedo is that one player in Chelsea that आपको पता चलता है यार, this is quality. हाँ. बाकी भी Reece James, I really like him. I think he's a wonderful right back when he's fit. था एक और मैं भूल रहा हूँ. कोल पामर है भाई. कोल पामर, yes. वो मेरे पास है और वो यार मैंने फर्स्ट पिक थी मेरी ड्राफ्ट में. मैंने लास्ट टाइम बताया था ये या नहीं. ये पता है सब जिन्होंने भी मेरे दोस्तों यारों ने देखा है ना, और जो तेरे से जानते नहीं है, उन्होंने कहा यार ये बंदा थोड़ा पागल है, जिसने कोल पामर को पहला पिक था ब्रो, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. सारे अवेलेबल थे. हाँ. और फिर भी तुमने कोल पामर लिया. उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उसकी उस रूल्स में ये है कि यू कैन रिटेन योर प्लेयर फॉर द नेक्स्ट सीजन. That's why I wanted Cole Palmer, ताकि मेरे जो सारे चेल्सी फैंस हैं ना वो सारे उनके पास कभी भी ना जाए. ये तूने बकर के खिलाफ स्पेशली चुनी है. बकर भी है और खैर बैराम भी. बकर एंड बैराम की they were pissed कि कोल पामर क्यों लिया. अभी भी मुझे मैं तो फिर भी ऐसे हालैंड लेना चाहिए था. हाइंडसाइट में बिल्कुल सही था, मैं गलत था. लेकिन ब्रो इस तरह की चीजें करने में मजा आता है ना. मजा तो आता है. अब मेरे पास है वो कहीं भी नहीं जा रहा कोल पामर अगले सीजन तक. समझ रहे हो. अगले साल में नहीं खेलेंगे भाई, और नई लीग बनाएंगे और कहेंगे दोबारा वापस रेगुलर एफपीएल पे आओ. शर्तें लगी हुई हैं ब्रो. अच्छा. हाँ, पैसे लगे हुए हैं यार. हमारा भी यार बैटिंग इज आराम, बट नहीं बैटिंग नहीं है ये. इट्स लाइक लीग पोजीशन से वो है. विंक बैटिंग नहीं है. हमारे भी पैसे लगे हैं हमारे दोनों लीगों पे, नॉर्मल और ड्राफ्ट पे भी. तो लेट्स सी क्या बनता है उस पे अंदर. यूनाइटेड का बताओ भाई. ड्रू. यूनाइटेड पहले ये बता कॉर्नर था या नहीं था. नहीं था. मेरे ख्याल में भी नहीं था. I don't think the whole ball went out and they got mad lucky. ठीक है. जितनी ऐसे मैंने देखा, जितनी मैंने कह लो I shat on Casemiro. देखो उसने प्रूव किया कि भाई मैं अभी इधर ही हूँ. लगता है वो भाई सुनते हैं हमारे पॉडकास्ट को. तो बट आई जस्ट फील के यार Casemiro ठीक है. इफ यू कम बैक टू द कॉर्नर नहीं था, गोल नहीं होना चाहिए था. Forest played really good. Yeah. I think they played good. I think United didn't play as well as they could. I would say the only thing that is good about them is the recruitment that they did. The Mbeumo and Cunha and Sesko, like we discussed. It'll take them some time. But I just feel कि यार वो बेचारा एमरएम जो है, बेचारा कहूँ या क्या कहूँ उसे, उसने प्लेयर्स को अपनी पोजीशन पे नहीं खिलाया हुआ. ठीक है. मतलब आप अमाद डियालो को, वैसे उसका गोल भी ज़बरदस्त था. ऑफ द लाइन क्लियरेंस भी लास्ट सेकंड हुई है. बट यू कैन नॉट प्ले हिम एज अ राइट wing back. He's a winger. You cannot play him as a wing back. यहाँ पे so you know these sort of things. And then डालो का पता चला कि वो उसका कोई अंकल है, कोई रिश्तेदार निकला है दूर का ब्रो, दूर दराज का. तो वो भी अब क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं, इसीलिए खेल रहे हैं. इसीलिए लेके डालो. I don't think he gets into the first team bro. लेकिन फिर मसला ये आ जाता है कि फिर वो हमारे डालो को राइट बैक खिलाता है, राइट विंग बैक खिलाता है. यार नहीं, वो फिर किधर खिलाएगा ना. मतलब who will he play? He doesn't have that again squad depth की बात आती है. He doesn't have that squad depth anymore. I still feel he needs to switch the formation. यार वो नहीं करेगा. वो तो उसने कह दिया कि मैं मरते दम तक नहीं करूंगा, और वो ना करे. हमारे stubbornness जो आती है ना. But you know I think what are they like tied with Chelsea and Spurs on points. ठीक है. Then again though bro, they're like top 7 top 8 अभी. They've gone through their difficult fixtures, personally speaking. अभी थोड़े से आसान आ रहे हैं. इनकी AFCON में Mbeumo जाएगा, लेकिन उसका गोलकीपर ओनाना है, तो आ जाएगा वापस. ठीक है. तो बाकी आई डोंट थिंक उसके अलावा इनके कोई मेन प्लेयर्स हैं जो जाएंगे AFCON के लिए. तो आई थिंक यूनाइटेड हैज अ सॉलिड चांस. आई वुडंट से टॉप 4 में भी, बट आई वुड से यूरोप का चांस है. और पिछले सीजन के बाद तो काफी स्कोप है इनका. आई डोंट थिंक वैसे इतने इजी रन ऑफ फिक्चर्स हैं आगे. यार बताओ. अभी तो स्पर्स है, फिर उसके बाद एवर्टन एट होम, दैट्स रिलेटिवली इजी फिक्चर. पैलेस अवे इज अ टफ वन. But Palace also, they're behind United right now. They're I think 9th and 8th या 9th. हाँ 8th या 9th होंगे I think. Palace is 9th. Yeah. And they're on 16 points I think with Brighton if I'm not mistaken. United is 17, 8th पे. तो
anything can happen. That's what I'm saying. Premier League, I love the league क्योंकि इतना unpredictability है. और यही है कि Spurs के खिलाफ तो Spurs तो इनका वो कह लें इनका वो Achilles heel है. Spurs. Bro, I think they've lost what is it 5? Spurs have lost 5 of the last 6 games and they've drawn the one game. Spurs को मैनचेस्टर में जाके कुछ हो जाता है. यार वो मैनचेस्टर अभी तो स्पर्स एट होम है तो एज इन मैनचेस्टर क्लब्स के हाँ मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ भी उनका अकीलीज हील है यूनाइटेड का भी अकीलीज हील है और आई फिर उन्होंने प्रीमियर लीग में हराया है फिर उनको चैंपियन उसमें भी हराया है यूरोपा लीग में भी पिछले सीजन में भी हराया है तो आई जस्ट फील स्पर्स कुछ ना कुछ कर जाती है यही होता है अक्सर जब वो हारते हैं वो फिर अगला मैच वो ऐसे वही ना टॉप सीड है स्पर्स एक जीतेंगे एक हारेंगे कोपेनहेगन को क्या 4-0 हराया है ठीक है अभी शायद एक और जीतेंगे फिर हार जाएंगे इसी तरह चल रहा है उनका तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द स्पर्स लेकिन आई वाजंट इम्प्रेस्ड विद द प्ले अगेंस्ट चेल्सी आई वाज सो नहीं वो डिसअपॉइंटेड वही मैं अभी न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूं हां मैं भी न्यूट्रल वरना तो मैं बड़ा खुश हूं कि वो और हारे सारे मैचेस हारे लेकिन यार इतनी डिसअपॉइंटिंग गेम यार दैट्स व्हाट कुछ तो कर लो बट दैट्स व्हाट आई फील एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव और इवन एज अ चेल्सी फैन लाइक चेल्सी शुड हैव स्कोर्ड मोर यस यू नो यू कैन नॉट कम अवे विद 1-0 एंड से कि हां यार बस कमाल कर दिया है इट wasn't an excellent performance by Chelsea either but खैर a win's a win like we said जैसे भी जीते हराम बॉल से जीते या 3 points bro that's what matters मैं तुम्हारे को यही बोल रहा हूं 3 points bro 3 points सही है खैर Wolves bro sacked their manager यार बेचारा विक्टर पेरेरा gone bye bye और तुझे पता है कौन आ रहा है Ten Hag के लिंक्स आ रहे हैं आई ना आ जाए ना bro I don't ना Wolves पसंद है मुझे Wolves पसंद है मुझे मैं उनके साथ ये नहीं चाहता हूँ यार उनके साथ मैं कहता हूँ बहुत ज्यादती हुई है वो जो मैनेजर था गैरी ओनील उसको उन्होंने फारिग करके स्ट्रैंड लार्सन को कहा चल तू जा न्यूकासल फिर उसे कहा नहीं पता तू इधर ही रहे फिर वो इंजरी हुई है उससे फिर वो वापस आया है मिडफील्डर्स इनके पास कुछ हैं स्क्वाड मतलब इतनी बुरी नहीं इतनी बुरी नहीं है वो हाउ मेनी पॉइंट्स दे हैव आई थिंक दे हैव लाइक रिडिकुलस लाइक दे लास्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 points or something last 2 points bro 2 points out of 10 is horrible man और मतलब I don't know I expect के Wolves would be doing better maybe Eric Ten Hag से आते हुए कुछ ना कुछ but I feel वो भी linked है दोबारा वो गैरी ओनील वापस लेकिन वो रिजेक्ट हो गया उसने रिजेक्ट कर दिया सुबह तक तो उसने कहा था कि नहीं ऑन सीन की ट्वीट आई थी अच्छा कि उसने कहा he is not coming Eric Ten Hag के साथ लिंक्स है hopefully he does not come और Wolves relegate now लेकिन हो जाएगा यार I feel Eric Ten Hag prove के वो कितना शिट है क्योंकि वो ब्रो नहीं आई मीन देख लो ना लेवरकूजन ने उस खैर ज्यादती तो लेवरकूजन ने भी की ज्यादती आप उसको अगेन टाइम नहीं देते और उसको रख के फिर फारिग करते हो बट आई जस्ट फील के वुल्व्स 2 points out of 10 relegation who do you feel is going to be relegated वैसे नहीं Wolves अच्छा very good Wolves is the first one to go great yeah interesting अगर अभी टेबल देखा जाए तो नॉटिंघम फॉरेस्ट है अच्छी कैंडिडेट है रेलीगेट होने के लिए वेस्ट हैम बर्नली लीड्स ये है बॉटम 5 आई पर्सनली फील एक तो चलो वुल्व्स तो गई ना आई डोंट फील टू हैप्पी विद बर्नली आई थिंक दे आर गोइंग डाउन यार बर्नली मे बी आई फील लीड्स जाएगी लीड्स जा सकती है लीड्स मेरे ख्याल में लीड्स जाएगी आई थिंक वेस्ट हैम तो आएगा रिसर्जेंस आएगा उनका हाँ और नॉटिंघम फॉरेस्ट इज राइट इनटू द थिक ऑफ इट यार कुछ पता नहीं है उनका सीजन कहीं भी जा सकता है दैट्स माय पॉइंट यार वो जो मैनेजर रखा है ना वो प्रो है आउट ऑफ गेटिंग यू आउट ऑफ दीस सिचुएशंस यार उसका काम ही यही है मैं वही ना इट कुड गो आइदर वे आई थिंक वुल्व्स यार देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रीमियर लीग मैन यू कांट इवन टेल लाइक आफ्टर 10 games ठीक है क्वार्टर ऑफ द सीजन गॉन यू स्टिल कांट टेल के ठीक है वुल्व्स आई फील मे बी वुल्व्स इज टू फार बैक बट द रेस्ट ऑफ द टीम्स बर्नली लीड्स आई थिंक I think West Ham too big a club to go down. And gone down before. I know, but like अभी जीते भी तो है ना आर्सेनल से पहले यूरोपियन टाइटल जीते हैं तो ओके चलो ठीक है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट भी जीती भी हमसे पहले सनडरलैंड फोर्थ आ रही है अभी आर्सेनल उधर क्या लग रहा है they're on a crazy run bro yeah but did you see the match against Everton I don't think यार उन्होंने कोई इतना जबरदस्त नहीं खेला और मुझे नहीं लगता Jaga scored bro हाँ Granit Xhaka Granit Xhaka
एंड आई मीन उसे ठीक है, वैसे भी वैसे चीप मिडफील्डर्स में बड़ा अच्छा ऑप्शन है पीएल वालों के लिए. आई मीन चलो ठीक है, एवर्टन के अगेंस्ट ड्रॉ किए होम पे, लेकिन उससे पहले चेल्सी को हराया उन्होंने अभी. हाँ, बट देयर एट होम अगेन. एंड आर्सेनल यार, आर्सेनल्स टू like you said before, too solid. Arsenal's season to lose. पता नहीं यार, मुझे यार इस तरह की टीम्स हरा सकती नहीं, लेकिन आई थिंक आर्सेनल विल विन. आर्सेनल विल विन. वही खिलाएगा ट्रोसार्ड, मरीनो और साका और एजे और राइस एंड जुबिमेंडी या मे बी वो दूसरा किसको, नॉरगार्ड तो नहीं खेल रहा, जुबी खेलेगा. जुबी वो था ना, विंग बैक्स उनके बेस्ट हैं. Too solid of a team to. लेकिन you never know. You never know. Sunderland with all of their fans, फिर Granit Xhaka against his former club. So you never know. Shithousery king है वैसे Granit Xhaka, तो पता है वो. और Daniel Ballard भी former Arsenal player है. तो Arsenal की एक जो history रही है ना, जिस तरह is the history of the Tottenham. Arsenal की एक history रही है, वो अपने foreign player से गोल जरूर खाता है. हाँ, तो 2 हैं वहाँ पे. यार गोल खा ही ना ले यार. वैसे वो क्या पेप ने कहा था ना वो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार कि विल दे एक्चुअली कंसीड, मतलब वो करेंगे ना एक दिन एक दिन करेंगे ना, और ऐसा आएगा ना वो गंदा गोल कंसीड करेंगे, फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है. फिर उसके बाद स्लंप ना स्टार्ट हो जाए यार. स्लंप नहीं होएगा. बहुत बड़ा स्क्वाड है यार, बहुत बड़ा स्क्वाड है. आई थिंक सबसे ज्यादा डेप्थ इनके पास ही है. एवरी पोजीशन के पास, every position में 2-2 बंदा है. Arsenal maybe even City as well bro. I don't think so. City has वो वाली क्वालिटी नहीं है bro. 8 तो डिफेंडर है हमारे भाई हर पोजीशन पे. उनके काम है. I mean उनका वो राइली खेल रहा होता है. I don't rate him. मैथ्यूज न्यूनेस उनका राइट बैक. न्यूनेस ठीक-ठाक डिफेंडर है. वो सेंटर मिड को राइट बैक शिफ्ट किया ना. और कौन है राइट बैक उनका बाय द वे? एट नूरी है ना. वो लेफ्ट बैक है. राइट बैक कौन है? राइट बैक उनका कभी सविनियो खिलाता है, लेकिन खुसनॉफ वो भी ठीक है, लेकिन वो तो सेंटर बैक ज्यादातर. देखो इनके पास मतलब या स्टिल फील स्क्वाड डेप्थ तो है, डिफेंडर्स हैं, बंदे हैं, मिडफील्ड में काफी बंदे हैं, अटैकिंग में भी. हालांकि आई डोंट थिंक आर्सेनल वाली डेप्थ है. मैं अभी भी बता रहा हूं. या दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि हर पोजीशन पे एक कवर तो आर्सेनल का है और ड्रॉप ऑफ इतना बड़ा नहीं है. इनके पास भी है, क्या मतलब नहीं है ना ब्रो. आइट नूरी गया तो निको राइली खेल रहा है. हमारा कैलिफ्योरी जाता है तो माइल्स लुइस केली खेलता है. उसका गोल नहीं देखा तूने यार? आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा कि कवर नहीं है. आई थिंक वो क्वालिटी नहीं है जो आर्सेनल के पास है. देख ले तू, बंदे कंपेयर करके देख ले. मेरी तू स्टार्ट कर ले. लेफ्ट बैक कैलिफ्योरी एंड माइल्स लुइस केली. चल लेफ्ट बैक मैं दे देता हूँ. रायन एट न्यूरी इज प्रीटी डिसेंट. नॉट बेटर देन कैलिफ्योरी दो. Not better than Calafiori यार. Numbers speak them for themselves. ठीक है. सेंटर बैक आ जा. सेंटर बैक तो मैं कहता हूँ दोनों ठीक है. और लेफ्ट बैक पे पियरी हिनकैपिए भी है जो by the way won by the way 8 out of 8 duels for the first time Arsenal की पता नहीं कब से. 100% ठीक है ना. Then you've got Julian Timber and Ben White on right back. हाँ. You've got Saliba, Gabriel, who's the third one? Christian Mosquera, Pierre Hincapie and Calafiori who can play center back. That's depth. ठीक है bro. मैं बता रहा हूँ. और मिडफील्ड में आ जा. मिडफील्ड में आ जाते हैं. जुबिमेंडी, राइस, एजे, ओडेगार्ड, क्रिस्टियन नॉरगार्ड. ठीक है. उधर फोर्डन. You have that Nico Gonzalez, Foden. You have Bernardo Silva. You Rodri. You have Ryan Diaz, Cherki. Yeah. And then you can play Marmoush maybe as well, but Marmoush you can play wing. Doku on the wing. Yeah. You have a decent team है bro. अच्छा, मैंने ये तो बोला ही नहीं है decent नहीं है. मैं कह रहा हूँ Arsenal has more cover. Then you come on to strikers. You've got Gyökeres, Havertz, Mikel Merino को मैं भूल गया था. मैं कहता हूँ तू सारे आर्सेनल को स्ट्राइकर मिला के ना एक हालैंड बेहतर. हालैंड चलो मैं बैकअप की बात कर रहा था. बैकअप हालैंड के अलावा इनके पास वो क्या है? बैकअप इनके पास हालैंड के अलावा क्या है वैसे? I really don't know. मार्मूश होगा. हाँ मार्मूश खेलता है वहाँ पे. मार्मूश खेलता है वहाँ पे. मैं देख लेता हूँ उनका और कौन है यार. स्कॉट. यस सर. रिको लुइस को भूल गए थे हम. रिको लुइस डिफेंडर. रूबन डियाज डिफेंडर. वो तो डिफेंडर में तो हम काफी लोगों को नेथन एके, ऑस्कर बॉब decent talent bro. Decent talent. It's all right bro. Savinho, Calvin Phillips अभी भी है इनके पास. Kovacic. Kovacic को क्या हुआ वैसे यार? इंजर्ड है. अच्छा. नो वंडर.
No wonder. I think he would have been he's a good Jan में वापस expected return. So that's 3 long months. term injury. Nathan Ake भी. John Stones को तो मैं भूल ही गया था. John Stones in and out, bro. I would say maybe chalo if you look for position, but if you look at versatility of players, definitely City has more. Like John Stones can play anywhere. So John Stones तो वो Champions League final में midfielder खेल रहा था, bro. तुम ये जैसे तुम अभी कहे number 10 Savinho, Nunez, Nico Riley. But would you want Savinho as your right back? Is my point. Yeah, if my tactics are set up like that, if I have the way City plays, maybe I wouldn't mind that because the way they play extremely attacking. You need an attacking overlapping guy. Just by the way, kudos to Pep on that कि उसने जो है ना अपनी stubbornness थोड़ी सी कम की है, उसने change किया, उसने कहा यार this guy is going to win you the title. Yeah. Erling Haaland. That's what direct, you want. That's I said like in that's the start, what you have direct. to do. Bro, they've gone direct और उनके goals भी देखो वो one touch मतलब वो चर्की के पास बॉल आती है सीधा थ्रू सबको पता है पहले होता था चलो थोड़ी सी हम पीछे पासिंग करते हैं पीछे थोड़ा सा करते हैं बट आई डोंट नो आई फील दैट्स ग्रेट उसके अलावा आई जस्ट कुछ बात रहेगी मेरे ख्याल में बात तो बस यही कोई है मैच नहीं रहेगा ना बस यही कैप्टन मतलब मैचेस तो बहुत हैं बट हमने कहा जरा बिग टीम पे फोकस करते हैं कैप्टन कैसे बना रहे हो हाँ मैं कैप्टन यार अभी तो कंफ्यूज्ड ब्रो यार अभी तो हालैंड में रखा हुआ है सोच तो मैं यही रहा हूं हाँ यार हालैंड आई डोंट नो लिवरपूल bro Sunderland away maybe you can put a like a defender because they don't have Gyökeres either so like what about Voltemada bro yeah the guy got subbed at half time bro they played did you see the West Ham game they played trash man 3-1 dominated ठीक है he played मतलब बहुत गंदा खेला है इन्होंने Newcastle if you watch the game they horrible they played trash man and I think West Ham won after क्या डेढ़ साल बाद जीते एट होम ऐसा ही है और अगला भी उनका होम फिक्सचर ही है तो पता नहीं देखते हैं बट आई फील हालैंड मेरा तो हालैंड इन माइंड है हालैंड मेक्स सेंस अगेन थोड़ा सा है तो सही टफ फिक्सचर लिवरपूल यार है तो सही लेकिन इट्स एट होम और लेकिन ये है कि लिवरपूल इज बैक आई मीन लिवरपूल विद द वे दे प्लेड अगेंस्ट मैड्रिड एज वेल टाइट हो गया यार मजा आएगा स्पाइसी फिक्सचर है ना बनाओ हालैंड को मैं तो कहता हूं किसको बना दो डिफेंडर Gabriel को बना दो बहुत बड़ा रिस्क है Gabriel को बना दो I don't know bro it is a tough one it is a tough one this week it's a tough one let us know what you guys think हाँ और आप किसको कैप्टन बना रहे हैं पहले बता देना ताकि मैं भी उसे बना दूं डेडलाइन डे से पहले बता देना Igor Thiago भी है bro वैसे तो Igor Thiago who do they play I think they play Brighton no they play Newcastle at home मार देगा Brentford by the way 50-50 bro Anything else we'd like to talk about, Jips? No, bro. I think that's about it. लंबा फिर हो गया आज हम सोचते हैं यार 25 मिनट में इससे रिस्ट्रिक्ट करेंगे लेकिन उससे ऊपर ही चला गया बातों से निकलती है यही तो मजा है ना पॉडकास्ट का ब्रो और अगर आप लोगों को भी मजा आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना सब्सक्राइब टू प्रो स्पोर्ट्स फुटबॉल और बाकी जिब्बी मुझे हर एक को हर जगह फॉलो भी कर देना हाँ जी बूथियाँ पसंद आई हो हमारी तो स्पॉटिफाई अमेज़न म्यूजिक iHeartRadio पैंडोरा पॉकेट कास्ट पॉडबीन एप्पल पॉडकास्ट में भूल गया था और जहाँ जाए वहाँ जाके सुन लेना और चिल मारो we'll see you guys next week until then bye bye